بند آنکھوں سے حقیقت اور کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے والے کا قصہ۔ غالباً وہ مرد اور عورت آپس میں میاں بیوی تھے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے اتنے بیزار نظر آ رہے تھے کہ شاید میاں بیوی ہی آپس میں اتنے بیزار ہو سکتے ہیں۔ پیٹرز برگ کے اسٹیشن پر اندرون دیہات جانے والی ٹرین کے انتظار میں پلیٹ فارم پر مشکل سے 1 درجن افراد موجود تھے۔ ان میں یہ میاں بیوی بھی شامل تھے۔ بیزاری کے باوجود وہ ایک جوڑا ہی نظر آ رہے تھے۔ عورت تقریباً 35 برس کی، کسی قدر لمبی اور خوبصورت جسامت کی مالک تھی۔ زنانہ اوور کوٹ میں بھی اس کے جسم کی موزونیت نمایاں تھی، جبکہ مرد تقریباً 40 برس کا تھا۔ اس کے نقوش اچھے تھے، لیکن سامنے سے اڑ جانے والے بالوں نے اس کی شخصیت کو متاثر کیا تھا۔ 5 سال پہلے وہ یقیناً بہت خوبرو آدمی ہوگا۔ اس نے بھاری اوور کوٹ پہن رکھا تھا۔ ان کے پاس صرف ایک بیگ تھا۔ برابر والی بینچ پر ایک نوجوان اور دلکش لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جو شاید طالبہ تھی۔ اس کے پاس کتابوں سے بھرا ہوا ایک بیگ تھا، اور وہ اس وقت بھی بائیولوجی کی ایک کتاب دیکھ رہی تھی۔ خاصے سرد موسم میں بھی اس نے منی اسکرٹ اور تنگ سویٹر پہن رکھا تھا۔ بیزار جوڑے کی بیوی نے اسے آتے ہی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا، لیکن اس نے جوڑے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اس کا بھاری چمڑے کا پرس اس کے پاس ہی رکھا تھا، اور کتابوں کا بیگ اس نے پاؤں کے پاس رکھا ہوا تھا۔ ابھی ٹرین آنے میں 10 منٹ باقی تھے کہ ایک نوجوان اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی پلیٹ فارم پر نمودار ہوئے۔ ٹرین کے منتظر باقی مسافر دور بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے لڑکی والی بینچ کا رخ کیا۔ بوڑھا چاندی جیسے بالوں والا صحت مند آدمی تھا، جبکہ اس کی عمر کم سے کم 70 سال تھی۔ البتہ اس کی چال سے کوئی کمزوری ظاہر نہیں تھی، وہ بالکل سیدھا چل رہا تھا۔ نوجوان کے جسم سے جیسے توانائی پھوٹ پڑ رہی تھی۔ وہ خوش شکل اور معصوم سے نقوش والا لڑکا تھا۔ اس کی عمر 20 یا 21 برس تھی۔ یہ لوگ لڑکی والی بینچ کی طرف چلے آئے تھے۔ لڑکی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور استقبال کرنے والے انداز میں مسکرائی، البتہ کچھ کہنے کے بجائے دوبارہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نوجوان چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ایک ایک چیز پر پڑ رہی تھی، اور کچھ دیر کے لیے وہیں اٹک جاتی تھی، جیسے اس نے پہلی بار یہ چیز دیکھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو دیکھنے والے کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتی تھی۔ اس بیزار بیوی نے لڑکے کو بھی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا، لیکن لڑکا اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ بوڑھا آدمی دھیمے قدموں سے چلتا ہوا لڑکی والی بینچ کی طرف آیا اور اس نے شفقت بھرے انداز میں پوچھا، میری بچی، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ہم یہاں بیٹھ جائیں؟ لڑکی اس کے لہجے اور مہذب شخصیت سے متاثر ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنا پرس ایک طرف کر کے مزید جگہ بنائی اور کہنے لگی، کیوں نہیں دادا جان، آپ دونوں یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ شکریہ میری بچی، بوڑھا بولا اور بیٹھ گیا۔ نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس کا لباس کسی قدر دیہاتی طرز کا تھا، لیکن اس کا انداز دیہاتی نہیں تھا۔ وہ یقیناً پڑھے لکھے اور تہذیب یافتہ لوگ تھے۔ کوئی دیہاتی اس انداز سے بیٹھنے کی درخواست نہیں کر سکتا تھا۔ نوجوان بدستور کھڑا ہوا تھا، اور بوڑھے آدمی نے بھی اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اچانک نوجوان نے ایک ستون کے اوپر لگی گھڑی دیکھی اور اشارہ کر کے کہا، دادا جان، یہ گھڑی ہے؟ اس کا انداز بیک وقت بتانے والا بھی تھا اور سوال کرنے والا بھی۔ بوڑھا آدمی جواب میں صرف ہلکے سے مسکرایا تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ اپنے پوتے کی بات سے محظوظ ہوا ہو۔ اس پر عورت نے ایک بار پھر منہ بنایا۔ وہ یقیناً تنک مزاج عورت تھی، جسے بات بات پر منہ بنانے کی عادت تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ٹرین کی آمد کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس دور میں مسافروں کو سہولت تو اتنی نہیں ملتی تھی، لیکن اس وقت ٹرینیں اپنے وقت پر آتی تھیں۔ اب سہولتیں زیادہ ہو گئی تھیں، پلیٹ فارم بھی بہتر ہو گئے تھے، لیکن ٹرینوں کی وقت پر آمد و رفت کم ہو گئی تھی۔ عورت نے آہستگی سے شوہر سے کہا، لگتا ہے ٹرین لیٹ ہے۔ ہاں ممکن ہے، مرد نے جواب دیا، لیکن مجھے امید ہے یہ زیادہ لیٹ نہیں ہوگی۔ یہ تمہارا اندازہ ہے؟ عورت کا لہجہ مذاق اڑانے والا ہو گیا تھا، اور میں نے تمہارا اندازہ کم ہی درست ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مرد نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن اس نے منہ دوسری طرف ضرور کر لیا تھا۔
उसी लम्हे प्लेटफॉर्म के सुतूनों पर नस्ब लाउड स्पीकर खड़खड़ाए और ऐलान हुआ, ओलियानो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 22 पर आने वाली है, मुसाफिर मुतवज्जे हों। ऐलान 2 मरतबा दोहराया गया। ट्रेन आने वाली थी, यानी वो मुश्किल से 1-2 मिनट लेट हुई थी। और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई, मर्द ने फातिहाना नजरों से औरत की तरफ देखा, लेकिन वो शौहर से बेनियाज नजर आ रही थी। अलबत्ता उसने अपने सामने रखा हुआ सफरी बैग यूं खिसकाया जैसे उसे उठाने का सोच रही हो। ट्रेन की रफ्तार सुस्त हुई और बतदरीज वो रुक गई। नौजवान ने बड़े शौक से ट्रेन को देखा और बूढ़े आदमी से फिर उसी अंदाज में कहा, दादा जान, ये जो सबसे आगे है, ये ट्रेन का इंजन है? इस पर औरत ने नौजवान को यूं देखा जैसे उसे नौजवान की दिमागी हालत पर शुबा हो। मर्द ने अपनी जेब से 2 अदद टिकट निकाले और उन पर नंबर देखने लगा। फिर उसने औरत से कहा, ये दाएं तरफ 17 नंबर। औरत ने सुना और शौहर की तरफ देखे बगैर डब्बे की तरफ बढ़ गई। उसने अपना बैग उठाने की जहमत नहीं की थी। मर्द ने उसका बैग भी उठा लिया था। लड़की अपना पर्स संभालते हुए खड़ी हुई। खड़ी होने पर उसकी दिलकश जिसामत और भी वाज़ेह हो गई थी। नौजवान ने उसकी तरफ देखा और उसकी चमकदार आंखों में इश्तियाक उभर आया। इस बार भी उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी जैसे आंखें कह रही थीं, दादा जान, कितनी खूबसूरत लड़की है ना। लड़की मुस्कुराते हुए अपनी किताबों का बैग उठाने लगी थी कि नौजवान आगे आ गया और उसने बिना कहे उसका भारी बैग उठा लिया। लड़की ने 17 नंबर डब्बे की तरफ इशारा किया, इसमें शुक्रिया के साथ। नौजवान उसके साथ चलने लगा। उनके पास एक ही बैग था जो बूढ़े ने उठा लिया था और उसके अंदाज से लग रहा था कि उसका वजन इतना नहीं है कि नौजवान को ताना दिया जा सके। उनके पास भी 17 नंबर डब्बे का टिकट था। ये बर्थों पर मुश्तमिल डब्बा था जिसमें आमने सामने ऊपर नीचे बर्तें थीं। लड़की की बर्थ तलाश करते हुए नौजवान मियां बीवी वाले हिस्से में जा पहुंचा। लड़की की बर्थ वहीं थी। नौजवान ने नंबर देखकर सामान ऊपर रख दिया। इतने में बूढ़ा भी आ गया और उसने अपना और नौजवान का टिकट निकाला और सीट नंबर गौर से देखा। बूढ़ा सीधा खड़ा हो गया। उसका अंदाज बता रहा था कि वो कुछ कहते हुए हिचकिचा रहा है। मर्द ने उसकी हिचकिचाहट भांप ली। उसने कहा, जनाब, ये हमारी सीट नहीं है। मेरी सीट पिछले हिस्से में है, लेकिन मेरी बीवी की नशिस्त यहीं है, इसलिए मैं यहां आ गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहां बैठ सकता हूं। बूढ़े की हिचकिचाहट दूर हो गई। उसने सर हिलाया। ठीक है बेटे, तुम यहां बैठ सकते हो। अगर आपका लेटने का इरादा हुआ तो मैं उठकर बराबर में चला जाऊंगा। लड़की बज़ाहिर बोल्ड थी और वो अपनी बर्थ पर चढ़ गई जो मियां बीवी वाली बर्थ के ऐन ऊपर थी। उसने बैग को तकिया बना लिया और उससे सर टिकाकर किताब पढ़ने लगी। नौजवान और बूढ़ा मियां बीवी के सामने वाली नशिस्त पर बैठ गए। नौजवान ने खिड़की के पास वाली नशिस्त संभाल ली। वो शीशे के बाहर देख रहा था जहां प्लेटफॉर्म पर वीरानी छाई हुई थी। फिर ट्रेन ने विसल दी और हरकत में आ गई। 1 मिनट के बाद वो स्टेशन से निकलकर शहर से गुजरने लगी। रेलवे लाइन के दोनों जानिब सनती इलाका था या फिर गरीबों की बस्तियां आबाद थीं। नौजवान उन सबको शौक से देख रहा था। कोई निस्फ घंटे बाद शहर के मज़ाफात भी खत्म हो गए और ट्रेन जंगलों, खेतों और वीरानों से गुजरने लगी। मियां बीवी बूढ़े के बर्थ पर बैठे थे। बीवी की बर्थ ऊपर वाली थी, लड़की की बर्थ के ऐन सामने। नीचे की दोनों बर्तें बूढ़े और उसके पोते की थीं। बूढ़ा इस मामले में मुहस्सिब था और नौजवान को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। उसे चीजों से इतना इन्हिमाक और इश्तियाक था कि अगर उसे खड़े होकर सफर करना पड़ता तब भी शायद उसे कोई एतराज ना होता। वो शीशे से चेहरा लगाए बाहर देख रहा था। फिर एक बार उसने पहलू बदला तो उसकी नजर ऊपर वाली लड़की की तरफ चली गई। उसने एक पांव समेट रखा था। लड़की ने फौरन ही नौजवान की निगाहों को महसूस कर लिया। उसने किताब से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसने लड़के की नजरों का बुरा नहीं मनाया था, क्योंकि उसकी निगाहों में आवारगी के बजाय सताइश थी। उसकी मुस्कुराहट कबूल करके लड़का फिर बाहर देखने लगा था। बूढ़े और शौहर को इस नजर नवाजी का पता नहीं चल सका था, लेकिन औरत ने भांप लिया। वैसे भी वो एक खूबसूरत औरत थी
और उसे मर्दों की नजरों का बड़ी अच्छी तरह तजुर्बा था। उसे मालूम था कि मर्द कब और किस तरह एक औरत को देखता है। उसने जान लिया था कि लड़के ने क्या देखा था और जवाब में लड़की ने क्या रद्द अमल दिखाया था। अगरचे नौजवान की नजर में मखसूस मर्दानापन नहीं था, लेकिन उसे फिर भी उस नौजवान से चिढ़ महसूस होने लगी। उसने कड़ी नजरों से नौजवान को देखा, जो अब बेनियाजी से खिड़की के बाहर देख रहा था। लग नहीं रहा था कि उसने चंद लम्हे पहले एक खूबसूरत लड़की को उसकी खुश बदनी पर खिराज तहसीन पेश किया था। वो उस लम्हे को बिल्कुल ही भूल चुका था और इस बार सामने एक नया मंजर था जिसमें वो गुम हो गया था। बीवी को हैरत होने लगी कि वो खूबसूरत औरतों के होते हुए भी वो नौजवान किसी बच्चे की सी दिलचस्पी से बाहर का मंजर देख रहा था। फिर उसे ख्याल आया कि नौजवान ने एक बार भी उसकी तरफ दिलचस्पी की नजर से नहीं देखा था। हालांकि वो उम्र में उस लड़की से बड़ी जरूर थी, लेकिन बाकी किसी मामले में उससे कम नहीं थी। बेशक उसने लड़की की तरह कम लिबास नहीं पहन रखा था, लेकिन ओवरकोट तले उसका लिबास उसके बदन पर चस्पा था। कोई भी मर्द उसमें दिलचस्पी लिए बगैर नहीं रह सकता था। अंदर आने के बाद उसने ओवरकोट उतार दिया था। इसके बावजूद नौजवान ने एक बार भी उसकी तरफ इस तरह नहीं देखा था। शायद इसी वजह से वो उससे इतना चिढ़ रही थी। इस वक्त वो किसी की बीवी नहीं रही थी, बल्कि औरत बन गई थी, जो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसी मर्द की बेनियाजी नहीं। ट्रेन किसी जंगल से गुजर रही थी। सरमा की आमद की वजह से दरख्त पत्तों से महरूम हो रहे थे और जिन पर पत्ते थे उनका रंग भी पीला पड़ गया था। जंगल मजमूई तौर पर खूबसूरत लगने के बावजूद उदास मंजर पेश कर रहा था, लेकिन नौजवान इतने ज़ौक़ और शौक से देख रहा था जैसे ये भरी बहार का कोई मंजर हो। एक बार दरख्तों की बड़ी सी कतार ट्रेन से गुजरते हुए सामने आई तो नौजवान का जोश और खरोश देखने वाला था। उसने मुड़कर अपने दादा से कहा, दादा जान, ये देखें, दरख्त हैं। उसका अंदाज वैसा ही था, सवालिया भी और बताने वाला भी। औरत हैरान हुई और सोचे बगैर न रह सकी। क्या यह नौजवान बिल्कुल पागल है? इतनी देर से इस किस्म की बातें कर रहा है। वो खुद पर जबर करके खामोश रही, वरना उसका दिल चाह रहा था कि यह बात कह दे। शायद उसके शौहर ने भी महसूस कर लिया था, इसलिए उसने बीवी का हाथ आहिस्ता से दबाया। औरत ने एक गहरी सांस ली और अपने तने हुए आसाब ढीले छोड़ दिए। फिर वो अपनी जगह से उठी और शौहर से कहने लगी, मुझे वॉशरूम जाना है। ये डब्बा खासा वीरान था और इसमें वॉशरूम बिल्कुल आखिर में थे, जहां दो मर्द बैठे हुए थे। शायद इसीलिए औरत अकेले जाते हुए हिचकिचा रही थी। शौहर खड़ा हो गया। वो दोनों वॉशरूम की तरफ जाने लगे। कुछ दूर निकलकर औरत ने आहिस्ता से कहा, क्या ये नौजवान बिल्कुल पागल है? पता नहीं, शौहर ने बेनियाजी से कहा। मुझे उसमें कोई खास बात महसूस नहीं हुई। औरत ने ताज्जुब से अपने शौहर की तरफ देखा, फिर उसके अंदाज में खफगी आ गई। ये खफगी इस बात पर थी कि जो बात वो महसूस कर रही थी उसका शौहर क्यों महसूस नहीं कर रहा था। वॉशरूम के दरवाजे पर रुककर उसने कहा, तो तुम्हारे ख्याल में इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है? तुम्हें नौजवान का रवैया मामूल से हटा हुआ नहीं लगा? हाँ, उसका रवैया मामूल से हटा हुआ है, शौहर ने तहम्मुल से कहा, लेकिन इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसकी कोई भी वजह हो सकती है। मसलन क्या वजह हो सकती है? यह मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई वजह जरूर होगी। शौहर का अंदाज टालने वाला था। क्या तुम्हें बिल्कुल भी तजस्सुस नहीं है? आखिर इसमें तजस्सुस की क्या बात है? शौहर ने पहले की तरह तहम्मुल से कहा, यह चंद घंटे का सफर है और हमें किसी हम सफर के बारे में इतना ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है? औरत ने बुरा सा मुंह बनाया और वॉशरूम में चली गई और शौहर बाहर खड़े होकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। वो चंद मिनट बाद बाहर आई तो शौहर से पहले से ज्यादा बेनियाज लग रही थी। साफ लग रहा था कि उनमें ज़हनी हम आहंगी की शदीद कमी थी। शौहर अपनी बीवी के सोचने के अंदाज से इत्तेफाक नहीं करता था। वो वापस आ गए। बूढ़ा खामोश बैठा हुआ था और नौजवान बदस्तूर बाहर देख रहा था, जबकि लड़की किताब पढ़ रही थी। उनका सफर दूसरे घंटे में दाखिल हो गया था। ट्रेन अब वीरानों से गुजर रही थी, जहां इंसानी बस्तियां बहुत कम थीं। दिन मुकम्मल तौर पर चढ़ाया था।
लेकिन कहीं कहीं अबर आ जाता और कहीं धूप चमकने लगती। ऊपर बैठी लड़की कसमसाई और फिर उसकी लंबी सडोल टांगें नीचे आईं और फिर दूसरे ही लम्हे वो खुद भी नीचे आ गई। उसने बेतकल्लुफी से नौजवान की तरफ देखा और पूरे एतमाद से कहा, क्या तुम मेरे साथ वॉशरूम तक चल सकते हो? बज़ाहिर ये सवाल था, लेकिन दर हकीकत लड़की ने नौजवान को साथ चलने को कहा और नौजवान खड़ा हो गया। क्यों नहीं मिस? लड़की उसके साथ चल पड़ी। लड़की आगे थी और नौजवान उसके पीछे था, इसलिए वो उसे देख सकता था और देख भी रहा था, लेकिन उसकी नजर में खोज नहीं बल्कि किसी हद तक हैरानी थी। शायद वो सोच रहा था कि कोई लड़की किस हद तक दिलकश हो सकती है। लड़की अगरचे उसकी नजरें महसूस कर रही थी, तब भी उसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। वो वॉशरूम के दरवाजे के सामने रुकी और उसने नौजवान की आंखों में देखा। उसने आहिस्ता से कहा, तुम ऐसे क्यों हो? नौजवान कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। लड़की वॉशरूम में चली गई। फिर वो चंद मिनट बाद बाहर आ गई और नौजवान के साथ वापस बर्थ की तरफ चल पड़ी। जिस वक्त वो दोनों वॉशरूम की तरफ जा रहे थे, औरत की बेचैनी देखने वाली थी। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे वो खुद उठकर उनके साथ चल देगी, लेकिन शायद शौहर और बूढ़े के ख्याल से रुक गई थी। मगर उसकी बेचैनी उसके जिस्म से झलक रही थी। वो बार बार पहलू बदल रही थी और उसकी नजरें रास्ते पर मरकूज थीं। शायद उसका ख्याल था कि लड़की और नौजवान वॉशरूम के बहाने गए हैं और अब खासी देर तक उनकी वापसी नहीं होगी। लेकिन जब 10 मिनट बाद ही वो दोनों वापस आ गए तो औरत को हैरत हुई और उसकी बेचैनी को सुकून भी मिल गया था। लड़की ऊपर जाने के बजाय अपना बैग उतार कर नीचे ले आई। शायद उसका स्टेशन आने वाला था। फिर ट्रेन रुकने लगी और लड़की खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो बैग उठाती, नौजवान ने उसका बैग उठा लिया और वो दोनों दरवाजे की तरफ चल पड़े। नौजवान ने दरवाजे के पास बैग रख दिया और लड़की उसके ऐन सामने खड़ी थी। वहां ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। फिर ट्रेन रुकी और दरवाजा खुल गया। लड़की नीचे उतर गई और नौजवान भी बैग उठाकर नीचे आ गया। तुम्हारा शुक्रिया, लड़की ने कहा और अचानक जरा उचक कर उसका रुखसार चूम लिया और बैग उठाकर बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ी। नौजवान उसे खुशी के आलम में देखता रह गया। फिर ट्रेन ने विसल दी और वो चौंका और फिर जल्दी से अंदर आ गया। ट्रेन का दरवाजा बंद हुआ और ट्रेन रवाना हो गई। नौजवान वापस आया और अपनी नशिश पर बैठ गया। लड़की चली गई थी, इसलिए औरत को अब नौजवान में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वो फिर से बीवी बन गई थी। उसने सर्द नजरों से नौजवान को देखा। बूढ़ा बदस्तूर साकित बैठा था। अलबत्ता कभी कभी वो मोहब्बत भरे अंदाज में अपने पोते को देख लेता था। नौजवान उसी ज़ौक़ व शौक़ से खिड़की के बाहर का मंजर देख रहा था। आसमान पर अब बादलों के आवारा टुकड़े नजर आ रहे थे। उसने एक बार पलटकर कहा, दादा जान, ये देखें, बादल हैं। औरत से अब सब्र नहीं हो सका और उसने बूढ़े से कहा, तुम इसे किसी दिमागी अस्पताल में क्यों नहीं दिखाते हो? क्यों मेरी बच्ची? बूढ़े ने नरमी से कहा, ये कैसी बातें करता है? औरत तेज लहजे में बोली, क्या कोई नॉर्मल आदमी इस किस्म की बातें कर सकता है? ये नॉर्मल है, बूढ़े ने उसी अंदाज में कहा। तो फिर ये इस तरह बातें क्यों कर रहा है? औरत तकरीबन चीख उठी थी, गोया उसका सब्र बिल्कुल जवाब दे गया था। इसने ये सब पहली बार देखा है, बूढ़ा बदस्तूर नरमी से कह रहा था। वो औरत के चीखने से मुतासिर नहीं हुआ था। इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। ये पैदाइशी नाबीना था। ऑपरेशन के बाद आज ही इसकी पट्टी खुली है। औरत सन्नाटे में रह गई और फिर यह सन्नाटा जैसे पूरे डब्बे में फैल गया। उसमें सिर्फ ट्रेन की मखसूस खटाखट सुनाई दे रही थी और नौजवान उसी ज़ौक़ व शौक़ से खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वो पहली बार दुनिया को देख रहा था।